So I'll delete that existing project. So start with how to create a project. We'll start from scratch in this case. तो project create करना है तो first make sure that the Django is installed in your system. उससे पहले Python is installed in your system, and then command prompt को open करो. In the command prompt you have to type a command. First मेरे को C drive के अंदर जाना है. So to go into C drive, I'll type cd slash enter. I'll come to C drive in this case. Is it visible or light off करें? So I'll type cd slash बोल के type करें तो it will come to C drive in this case. Now here I need to create a project in this. तो project create करने के लिए the command is Django minus admin start project followed by आपका project का नाम. Say I'll keep the project name as college. Okay. Click on enter. वो एक project create होता है. If there is no error, then वो सीधा next prompt दिखाता है. If Django is not installed, it will show error saying that Django is not recognized as internal or external command बोल के it will give a error message. अगर command prompt वापस आ गया तो मतलब आपके C drive के अंदर, so I'll go to the C drive in this. So C drive के अंदर I can see a folder called as college. College के अंदर और एक college बोल के folder रहता है. This is very important folder for us, and this file is also very important for us. Okay. Next, college folder के अंदर जाने का अभी next आपको एक application create करना वो folder के अंदर. तो to go inside the college folder, cd college, click on enter. So cd college मतलब now I am inside that college folder in this. यहाँ पे मेरे को एक project create करना. Project create करना बोले तो it is python manage.py जो फाइल वहाँ पे already था वो फाइल यूज करके we give the name of the application in this case. तो application create करने के लिए we say start app, उसके बाद the name of the application. Say I want the application name to be student. Click on enter. अगर command सब ठीक है, it will show the command prompt. And go to your project folder in this case. यहाँ पे आपको और एक folder मिल जाएगा called as student in this. Okay. इसके बाद the third step that we do, very simple. Go to the आपका project folder college in this case. College folder में जाके settings.py में एक फाइल रहता है. वो फाइल के अंदर you have to mention that student is also one of the application in the folder in this. तो उसके लिए हम क्या करना है, हमें installed apps बोल के एक list रहता है. Inside this you add that option here by mentioning student. Whatever the application name we have given, that application name should be mentioned here in this case. Okay. तभी हमारा सर्वर को पता चलता है कि where our what is the name of our application. That's the first thing in this. इसके बाद ये settings.py में इतना लिख दिए तो फिलहाल settings.py का काम हो गया. Okay, and close this file. Close करते ही come to your same project folder in this. वहाँ पे और एक फाइल रहता है called as urls.py. urls.py को open करो. Open करके you have to make two changes in this. The first change is from django.urls import path comma डाल के यहाँ पे एक और एक built-in function आता है called as include. So वो include function को मैं import करता हूँ. Okay? क्यों import करते हैं? Because मुझे क्या करना है, मेरे project से वो application को जाने के लिए एक path create करना. Okay? So for that we create a path. पाथ में दो फीचर, दो एट्रीब्यूट्स आपको देना है. फर्स्ट एट्रीब्यूट इन दिस, वो एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए क्या नेम देना है. यू कैन गिव सम नेम इन दिस केस. आई कैन कॉल इट एज स्टूडेंट, और आई कैन, अगर मेरे पास सिर्फ एक ही एप्लीकेशन है वो प्रोजेक्ट के अंदर, आई कैन कीप इट एम्प्टी इन दिस. ओके, सो विल कीप इट एम्प्टी फॉर द फर्स्ट टाइम, सेपरेटेड बाय कॉमा, एंड देन वी गो फॉर इंक्लूड. इंक्लूड जो हमने फंक्शन वहां पे मेंशन किया था. क्यों बोले तो
अगर यूजर ब्राउजर में यूआरएल में कुछ भी टाइप नहीं करता एक्सेप्ट दैट localhost:8000 के बाद कुछ भी टाइप नहीं करता है, तो वो कौन सा एप्लीकेशन एक्सेस करना, दैट शुड बी मेंशन्ड इन द इंक्लूड। तो इंक्लूड में हम क्या करते हैं, वी मेक यूज ऑफ ए डबल कोटेशन, इसके अंदर आपका एप्लीकेशन का नाम, आपका एप्लीकेशन का नाम इज स्टूडेंट डॉट URLs बोल के फाइंड। बिकॉज रिमेंबर, जब भी आप ब्राउजर ओपन करते हो, वॉट एवर यू टाइप gmail.com, यूट्यूब, दे आर कॉल्ड एज URLs। तो हर बार वो URL फाइल के अंदर ही सर्च करेगा। सो whenever you type any localhost:8000 बोल के टाइप करेंगे, इट विल कम टू द urls.py। यहाँ पे इट विल मेंशन इंक्लूड में कहाँ पे जाना। आप बोल रहे हो स्टूडेंट फोल्डर के अंदर URLs बोल के एक फाइल है, वहां पे जाओ बोल के। ओके, सेव करो एंड स्टूडेंट वापस जाके स्टूडेंट फोल्डर, डू यू फाइंड द urls.py हियर? नहीं, यहाँ पे urls.py डिफॉल्ट नहीं रहता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉलेज में जो urls.py है, कॉपी करो एंड पेस्ट इट इन द स्टूडेंट। इन दिस केस स्टूडेंट में डाल के फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डिलीट दीज टू लाइंस, कंपल्सरी डिलीट करना है। नहीं तो क्या होता है, यहाँ पे डाल दिए तो फ्रॉम द प्रोजेक्ट फोल्डर इट कम्स हियर, और यहाँ पे आप बोल रहे हो कि गो टू स्टूडेंट, फिर यही फाइल को रिडायरेक्ट करता है, तो इट विल गो टू अ कंटिन्यूअस लूप। वो नहीं होना, इसीलिए हम क्या करते हैं, वी डिलीट एवरीथिंग इन दिस। क्लियर टिल हियर? तो क्या क्या किया, फर्स्ट वी क्रिएटेड अ प्रोजेक्ट, उसके बाद वी क्रिएटेड अ एप्लीकेशन, देन वी वेंट टू द settings.py में इंस्टॉल्ड एप्स में हमने वो हमारा एप्लीकेशन को रजिस्टर किया। उसके बाद वी वेंट टू द URLs ऑफ द प्रोजेक्ट फोल्डर, उसके अंदर एक पाथ ऐड करते हैं, दैट इज पाथ टू कम टू स्टूडेंट URL। फिर वो urls.py जो भी है, हम उसी को फाइल को स्टूडेंट फोल्डर में कॉपी पेस्ट करते हैं एंड वी डिलीट द URL पैटर्न। मतलब वो URL पैटर्न इज क्लियर इन दिस। सेव करो। इतना होने के बाद द नेक्स्ट थिंग इज वेरी सिंपल, वी विल राइट अ कमांड python manage.py make migrations। फिलहाल अब तक जो भी हमने क्रिएट किया है, वॉट एवर द स्टेप्स यू हैव टेकन, वो करेक्ट है कि नहीं चेक करने के लिए आई मेक यूज ऑफ मेक माइग्रेशन। वहां पे नो चेंजेस डिटेक्टेड बोले तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। मेक माइग्रेशन होने के बाद वी एग्जीक्यूट वन मोर कमांड, दैट इज माइग्रेट। क्लिक ऑन एंटर। हमारे प्रोजेक्ट के लिए जो भी नेसेसरी रिक्वायर्ड परमिशंस है, फाइल्स है, सब हमारे सिस्टम में लोड होता है, मतलब हमारे फोल्डर में लोड होता है। लोड होने के बाद एक पूरा लिस्ट आता है। आफ्टर दिस एग्जीक्यूट द थर्ड कमांड इन दिस, दैट इज रन सर्वर। जब मैं रन सर्वर पर क्लिक करता हूं, इट विल मेक श्योर दैट देयर इज नो मिस्टेक्स इन द फाइल एंड इमीडिएटली वो क्या करता है, इट विल शो मी अ मैसेज दैट इज क्विट द सर्वर विद कंट्रोल ब्रेक। अगर क्विट द सर्वर विद कंट्रोल ब्रेक आ गया, मतलब whatever the steps that you have followed till now is correct in this case। ओके, अभी मेरे को क्या है, आई वांट टू मेक श्योर दैट द एग्जीक्यूशन इज करेक्ट और नॉट। वो एग्जीक्यूशन करेक्ट है कि नहीं चेक करने के लिए ओपन द ब्राउजर। ब्राउजर में यू टाइप अ URL दैट इज localhost:8000, आगे कुछ भी नहीं। ओके, क्लिक ऑन एंटर, तो इट विल शो दिस। अगर ये आ गया तो आपका प्रोजेक्ट करेक्ट करेक्ट क्रिएट करे, आपका एप्लीकेशन भी करेक्ट क्रिएट करके कॉन्फ़िगर करे। दिस इज वन टाइम। अब तक जो भी हमने किया, इट्स ऑल वन टाइम इन दिस। एक बार कर दिया तो द एप्लीकेशन इज रेडी। अभी मेरे को सर आई वांट टू रन वन HTML पेज, तो HTML पेज आपको क्रिएट करना है। यू गो टू द एप्लीकेशन फोल्डर। आपके एप्लीकेशन फोल्डर में all the HTML files are put inside one folder called as templates। and याद रखो, templates में spelling mistake नहीं होना चाहिए। ओके,
So I create a folder called as templates. Inside this templates, you put all your HTML pages here. जैसे मेरे को एक स्टूडेंट का डेटा रजिस्टर करना है, so I put that registration form inside the template in this case. So एक HTML page create करेंगे. I will save this file. Save as. Register student.html. Okay, so एक HTML structure and inside this register बोल के title and then एक heading tag में register. एक simple registration form you can create in this. एक 3-4 field का form चाहिए मेरे को. Okay, so you can create with form tag name is equal to register student, method is equal to post, and auto complete equal to off, and close. Okay, इसके अंदर I want to take the student name, उसका mobile number, उसका email ID and which course he is studying. 4 information मेरे को चाहिए. So मैं क्या करता हूँ, I'll make use of the form design app पे depend है, so I'll make use of same label बोल के एक tag देता हूँ. Inside this tag I will say student name, input type is equal to text, name I will give student name, ऊपर जो label ले आया हूँ I will give the same name. Required compulsory property है, so I'll give required in this case. और उसके बाद I will give placeholder, say enter student name. उसके बाद I will give pattern property because I don't want numbers to be entered in this. So A से Z, capital A से capital Z, I can give dot option dot yes option. And name जब दे रहा है minimum 2 letter चाहिए, maximum 100 letters. Okay, you mention the attributes. इतना सारा attribute है तो बस. And since it's the first tag, I will put auto focus equal to on. मतलब since it's the first tag, the auto focus will be displayed. उसी तरह I will take use of the next line पे I will make use of mobile number. Auto focus नहीं चाहिए. Type is equal to will be number. Name will be mobile number. Placeholder में भी mobile number. Pattern में I want only 0 to 9 in this case. And 10 digit, उससे ज़्यादा नहीं. Okay. Next, mobile number हो गया. I need to take his email ID. So I'll make use of email ID. Type is equal to email बोल के आता है. Mobile number के जगह में email ID. Required, enter email ID. Pattern written कुछ नहीं. I'll add one more field in this. वो कौन सा कोर्स यहाँ पे पढ़ रहा है, कोर्स. और फॉर कोर्स आई विल मेक यूज ऑफ सेलेक्ट टैग. सेलेक्ट टैग के अंदर नेम इज इक्वल टू कोर्स, कंपल्सरी है, सो आई विल कीप इट रिक्वायर्ड. इसके अंदर ऑप्शन टैग यूज करो. सेलेक्ट course, option value empty, option tag, say full stack, web designing, software testing. ये मेरे पास 3 courses है. I'm giving the 3 course का option in this case. उसके बाद I need to take password. लॉगिन करने के लिए आगे चाहिए मेरे को. So I'll take one more option, that is password. Type is equal to password.
name also, password placeholder में enter. Okay, last में I will put input type is equal to submit, name is btn submit, value में I will call it as register. Okay, so इतना हो गया मेरा HTML का फॉर्म. Okay, I told you HTML फॉर्म जब भी आप क्रिएट करते हो, always the form tag must have a one more tag called as CSRF underscore token. CSRF underscore token will give us the security enhancement in this case. मतलब जो रिक्वेस्ट भेजा है वही वो पेज का डेटा सेंड कर सकता है. ओके, तो उसके लिए वी मेक यूज ऑफ द CSRF बोल के टोकन. सो सिंपल फॉर्म डिजाइन ऐप यूज्ड. अभी जब भी आप फॉर्म डिजाइन क्रिएट करते हो, यू हैव टू डू टू थिंग्स इन दिस. द फर्स्ट थिंग इज आपके urls.py में you have to write from student import views. views बोल के एक फाइल है, वो फाइल को हम इंपोर्ट करते हैं. सेकेंड थिंग इन दिस केस, यहाँ पे एक पाथ ऐड करते हैं टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर वेब पेज. पाथ के अंदर 3 प्रॉपर्टीज हम भेजना है. we send 3 properties in this. first property, the name of the URL. वो पेज एक्सेस करने के लिए क्या नाम चाहिए. I'll call it as register student. I give the name as register students. अगर कोई ब्राउजर में register student बोल के डालेगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए. So for that we give it in the next property, that is views dot register student. Okay, उसके बाद a one more property called as name. Let's not bother about the name for the time being. name बोल के same name दे दो. Okay, so एक HTML पेज क्रिएट करें तो कंपल्सरी you have to add the path in this case. path ऐड करने के बाद go to views.py of your application folder. यहाँ पे उसके नाम पे एक फंक्शन लिखना है. सो फंक्शन कैसे लिखेंगे? वेरी सिंपल, def student register and whatever name you have given here should be similar to what you have given here. ओके, सो इसके अंदर स्टूडेंट बोल के एक पैरामीटर पास करते हैं कॉल्ड एज रिक्वेस्ट. ये रिक्वेस्ट बोल के टाइप नहीं करना है, यू कैन कॉल इट एज REQ, लेकिन वी जनरली प्रेफर इट टू बी अ फुल वर्ड इन दिस केस. तो रिक्वेस्ट कोलन इसके अंदर. So inside this, I want to call the HTML file. HTML फाइल को कैसे कॉल करना है? वेरी सिंपल, रिटर्न रेंडर बोल के एक फंक्शन है. यूज दिस रेंडर फंक्शन टू कॉल द HTML पेज. लेकिन वो HTML पेज को कॉल करने के लिए मिनिमम 2 पैरामीटर पास करना है. द फर्स्ट पैरामीटर इज द रिक्वेस्ट एंड सेकेंड पैरामीटर इज द नेम ऑफ द HTML फाइल. तो HTML फाइल का नाम है probably register student, so I'll use this dot html for this. सर अब ये HTML पेज में ब्राउजर में कैसे डिस्प्ले करना? वेरी सिंपल, आपके urls.py में whatever you have given in the double quotation here, उसको कॉपी करो एंड यहाँ पे पेस्ट करो and click on enter. It should show you your login page. Register page in this case. Clear with this point? Any doubt till here? No doubt in this? अच्छा दिख रहा है? तो how to improve the design in this case? तो design improve करना very simple. I had told you earlier also. वो जो भी आपने HTML पेज क्रिएट किए हैं, कॉपी करो पूरा पेज को. Go to the ChatGPT. पूरा पेस्ट को फाइल को पेस्ट करो एंड टेल हिम improve UI using Bootstrap. बस वो खुद करके दे देगा आपको. जस्ट वेट फॉर हिम टू कंप्लीट. अगर आप बूटस्ट्रैप मेंशन नहीं करेंगे तो वो CSS लेगा. सो
be specific that I want it in the bootstrap in this case. हो गया, सजेशन भी देता है आगे, अगर कुछ और कुछ चाहिए तो कलर थीम चेंज, राउंडेड फॉर्म स्टाइल, वैलिडेशन मैसेज, जैंगो टेम्पलेट इंटीग्रेशन, ये कुछ भी नहीं चाहिए, वो हम खुद कर लेंगे. कॉपी दिस, पेस्ट इट, सेव करो. नाउ यू रन द दिस. इतना इजी है फॉर्म डिजाइन करना, दैट टू यूजिंग द बूटस्ट्रैप. हाँ, हमारा और उसका थोड़ा कन्वेंशन अलग अलग रहता है, बिकॉज हमारे को क्या बोले तो कंपलसरी फील्ड स्टार बोल के डालना है. ओके, और गैप ज्यादा है, बिकॉज वो क्या करता है हमेशा, इट विल मेक यूज ऑफ MB4, MB4 या MB3. उतना जगह मेरे को वेस्ट नहीं करना है. वी जनरली यूज इट टू बी MB2. तो एक बार उसको डाल के रिप्लेस कर लो ना, तो करके दिया है. ये सेव सो मच ऑफ टाइम, थोड़ा रिप्लेसमेंट हम भी कर लेंगे. ओके, सेव करो एंड यू कैन रिफ्रेश. क्या थोड़ा कम हुआ. सेकेंड थिंग इन दिस, सर आई वांट ऑल दीज टू बी इन बोल्ड लेटर्स. बोल्ड लेटर है तो उसको भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. सो यू कैन सी हियर वी हैव अ फॉर्म लेबल. बोल्ड टैग करना है, हर जगह पे बैठ के बी टैग मत डालो. You can see all these labels are in the same tag. तो मैं क्या करता हूँ, I will use a find and replace method. तो मैं बोला जहाँ पे भी लेबल क्लास फॉर्म लेबल है, वहाँ पे लेबल क्लास फॉर्म लेबल बोल्ड टैग के साथ एंड रिप्लेस ऑल. एंड बोल्ड टैग को क्लोज करना है. तो क्लोज करना है, तो जहाँ पे लेबल क्लोज होता है उससे पहले I want the bold tag to be closed and replace it. तो वो लेबल अभी को बोल्ड दिखेगा. ठीक है सर, आई वांट एक्चुअली ये टैग और लेबल के बीच में एक जगह नहीं होना चाहिए. ओके, दैट इज बिकॉज ऑफ द लेबल टैग. लेबल टैग यूज किया इसीलिए वो जगह गैप आ रहा है. मैं उसी को निकाल देता हूँ. आई डोंट वांट दैट लेबल टैग. आई डोंट वांट द क्लोज ऑफ द लेबल ऑल्सो. ठीक है, वो सभी में चला गया वो. सेव करो, रिफ्रेश. अभी आप देख सकते हो लेबल और टैग दोनों कंटिन्यूअस है. हाँ, एक टैग के बाद नेक्स्ट टैग जो है यहाँ पे गैप चाहिए, एंड आई हैव गिवन दैट MB2 इन दिस केस. जनरली यहाँ पे रजिस्टर करते रहते हैं, वो क्लास अलग ही रहता है उसका. हमारे को यहाँ पे BTN प्राइमरी नहीं, सक्सेस चाहिए. तो सक्सेस रेड में, ब्लू के जगह पे ग्रीन में आ जाए. सर इतना लंबा अच्छा नहीं दिख रहा, छोटा ही रखेंगे. उसमें और एक क्लास दिया BTN LG, मतलब फुल लॉन्ग बोल के है. निकाल दो इसको. तो विड्थ कम हुआ, उसका विड्थ फिर सेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये क्लास ग्रिड को निकालो. हाँ, यू हैव टू पुट इट इन द सेंटर टैग इन दिस. तो पूरा बटन टैग को सेंटर में डाल दिया. आई गॉट इट इन द सेंटर. Got this point? So this is how we create a form design in this case. Clear till here? No doubt in this? Everyone will write down or you'll remember this? याद रहेगा. कंपल्सरी फील्ड को स्टार डालना है, so that also is required in this case. Like student name, it is compulsory. So font tag star and color is equal to red. तो अभी यहाँ पे 4 फील्ड है, आई विल कॉपी पेस्ट. नहीं तो फाइंड एंड रिप्लेस ऑलवेज. फाइंड एंड रिप्लेस इज द बेस्ट ऑप्शन, लेकिन अभी 4 ही फील्ड है, तो आई विल जस्ट पुट इट माई सेल्फ. सेव करो, रिफ्रेश. जो भी कंपल्सरी फील्ड्स है, दे आर इन द रेड फॉन्ट इन दिस केस. क्लियर टिल हियर? एनी डाउट इन दिस? ओके, इतना होने के बाद फॉर्म डिजाइन हो गया. अभी ये डेटा सेव करना है.
तो डेटा सेव करने के लिए वी हैव अ वन मोर फाइल हियर कॉल्ड एज models.py. models.py में you have to create a class where we can store the uh, data in this case. ओके तो उसके लिए एक क्लास क्रिएट करते हैं, कॉल इट एज स्टूडेंट डेटा. यू कैन गिव एनी नेम इन दिस, वो पेज का नाम मत दो बस. ओके इसके अंदर एक पैरामीटर पास करते हैं दैट इज मॉडल्स डॉट मॉडल. ओके इनसाइड दिस हर एक डेटा जो आप यूजर के पास से ले रहे हो, हर एक डेटा के लिए एक कॉलम क्लास वेरिएबल क्रिएट करना है. लाइक आई वांट टू टेक स्टूडेंट नेम, यहाँ पे स्टूडेंट नेम एक वेरिएबल इज क्रिएटेड विद दिस. इसके अंदर वी मेंशन द टाइप ऑफ वेरिएबल इन दिस, मतलब व्हाट टाइप ऑफ डेटा यू विल स्टोर इनसाइड दिस. कैसे? वेरी सिंपल, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड बोल के एक फंक्शन आता है. कैर फील्ड बोल के फंक्शन मेंशन करो, उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स स्टोर होना चाहिए. सो फॉर दैट वी यूज वन मोर कॉल्ड एज max underscore length. max underscore length मैं बोलता हूँ 100, मतलब it will store 100 characters. उसी तरह the next field that I want to store, I will make use of a one more variable in this. यहाँ पे किस ऑर्डर में आपने डेटा ले रहे हो वही ऑर्डर में वेरिएबल्स को क्रिएट करो. सेकंड इज मोबाइल नंबर, तो मैं क्या करता हूँ, आई विल गिव इट एज मोबाइल नंबर के बाद आई हैव ईमेल आईडी, आई विल यूज ईमेल आईडी. ईमेल आईडी के बाद आई वांट टू यूज नेक्स्ट फॉर द कोर्स नेम, सो आई विल मेंशन course name के बाद I need to mention the password, so I'll make use of. उसके बाद मेरे को एक कॉलम चाहिए दैट इज सॉफ्ट डिलीट. सॉफ्ट डिलीट क्यों बोले तो अगर स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट करना है, आई विल मेक यूज ऑफ दिस सॉफ्ट डिलीट. एंड सॉफ्ट डिलीट इज ऑलवेज अ इंटीजर फील्ड इन दिस. तो मैं क्या करता हूँ, वी मेक यूज ऑफ वन मोर फंक्शन कॉल्ड एज इंटीजर फील्ड. अगर आपको डेसिमल वैल्यू स्टोर करना है, float field in this. Max length नहीं चाहिए, I don't want max length in that place, क्योंकि max length is only for the char field in this. And soft delete में हमेशा 0 होना चाहिए, so we use a one more field here called as default. I'll give default equal to 0, मतलब even if I don't enter any data, by default वहाँ पे 0 जाता है. बट कभी भी स्टूडेंट कोई रजिस्टर हुआ तो इमीडिएट उसको डिलीट नहीं करते. सो बाय डिफॉल्ट इट विल ऑलवेज बी एक्टिव, मतलब सॉफ्ट डिलीट 0 ही रहना चाहिए. सो आई पुट इट एज 0 इन दिस. क्लियर टिल हियर? व्हेनेवर यू मेक एनी चेंज इन द models.py, कंपल्सरी आपको सर्वर क्लोज करना है. यू हैव टू एग्जीक्यूट मेक माइग्रेशन एंड माइग्रेट. तो now let me execute make migration. लास्ट टाइम no changes detected बोल के बोला था, अभी क्या हो रहा है, इट इज शोइंग create model student, मतलब वो जो मॉडल हमने क्रिएट किया था वो उसको एक्सेप्ट कर लिया. जब भी आप मेक माइग्रेशन एग्जीक्यूट करते हो, ऑलवेज एग्जीक्यूट द माइग्रेट कमांड इन दिस. क्लिक किया तो वो स्टूडेंट बोल के जो स्टूडेंट डेटा बोल के जो मॉडल था, वो मॉडल को he has created and submitted to the server in the name of 0001 dot initial. मतलब वो मॉडल का क्लास नेम चेंज कर देता है, he'll give a serial number in this. उसके बाद मेक रन सर्वर फिर से रन करो, मेक श्योर देयर इज नो एरर इन दिस केस. बट दिस पॉइंट तो पूरा बैड थ्योरी नको. We have created a front end, that is our HTML page in this case, or we have created a back end in this, that is models.py. अभी हमारे को ये डेटा फ्रॉम द फ्रंट एंड शुड बी स्टोर्ड इनसाइड द models.py. मतलब जो भी मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, these information must be stored inside this student data. तो उसके लिए we make use of the views.py, the function. ये फंक्शन के हेल्प से वो काम कर सकते हैं. कैसे?
से वेरी सिंपल यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ msg is equal to empty बिकॉज वो डेटा स्टोर होने के बाद द डेटा हैज टू बी स्टोर्ड इनसाइड द आई मीन डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज इन दिस इसके अंदर we make use of a if condition that is request dot method डबल इक्वल टू पोस्ट याद रखिए ये हमारा HTML पेज में जब भी मैं डेटा इसके अंदर इंफॉर्मेशन टाइप करके when I click on the register button okay the HTML पेज क्या करता है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जिसका नाम है पोस्ट ओके एंड ये पोस्ट के अंदर वो जो भी आपने डेटा टाइप किए हैं व्हाटएवर द इंफॉर्मेशन यू हैव टाइप्ड ऑल दीज इंफॉर्मेशन विल बी स्टोर्ड इन दैट पोस्ट ऑब्जेक्ट तो उसको मैं यहाँ पे चेक करता हूँ बिकॉज अगर वहां पे सबमिट बटन या रजिस्टर बटन क्लिक नहीं किया तो पोस्ट बट ऑब्जेक्ट विल नॉट बी क्रिएटेड तो अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि पोस्ट ऑब्जेक्ट क्लिक हुआ कि नहीं मतलब वो सबमिट बटन क्लिक हुआ है कि नहीं अगर हुआ है तो मेथड बोल के जो यहाँ पे वेरिएबल है उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया जाता है अगर आपने वो सबमिट बटन नहीं क्लिक किया तो द मेथड ऑब्जेक्ट विल बी एम्प्टी एंड द कंडीशन विल फेल गॉट दिस पॉइंट तो व्हाट वी डू इज अगर ये मेथड पोस्ट इनिशियलाइज हुआ है इनसाइड दिस we fetch the data from the HTML page and we store it inside the models.py उससे पहले हमारे को यहाँ पे वो models.py एक्सेस करना होता है तो उसको इंपोर्ट करो कैसे इंपोर्ट करेंगे वेरी सिंपल फ्रॉम आपका एप्लीकेशन का नाम दैट इज स्टूडेंट डॉट मॉडल्स इंपोर्ट स्टार तो क्या हो रहा है यहाँ पे इन दिस लाइन वी आर टेलिंग दैट स्टूडेंट बोल के जो एप्लीकेशन फोल्डर है उसके अंदर मॉडल्स बोल के एक फाइल है उसके अंदर जितने भी क्लासेस है आई एम एक्सेसिंग ऑल द क्लासेस फिर वहां पे रहे जो एक ही क्लास है कैन वी गिव द डायरेक्ट नेम ऑफ द क्लास यस यू कैन गिव लेकिन कल फ्यूचर में वी विल कीप ऑन एडिंग द क्लासेस इनसाइड दिस models.py तो उसके लिए अभी लिख देता हूँ कि स्टार इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेपरेट क्लासेस तो स्टार लिख दिया तो कल जितने भी क्लास ऐड करता हूँ ऑल द क्लास नेम्स विल बी इंपोर्टेड इन दिस केस एक बार इसको इंपोर्ट किए तो वेरी सिंपल वो क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे दैट इज वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस स्टूडेंट क्लास एंड विल स्टोर द डेटा इन दिस केस ओके वो कैसे इंपोर्ट करेंगे एंड हाउ द डेटा इज स्टोर्ड दैट वी विल सी इट इन द नेक्स्ट क्लास इन दिस केस ओके next class is on Friday कल class नहीं है so we'll be having the next class on Friday तो Friday के दिन we will store the data in this जब तक इतना ready करके रखना है got this you do it in your laptop or you do it here only that is your choice okay yes we'll stop at this point Asma and Fatima any doubts ओके तो नेक्स्ट क्लास फ्राइडे के दिन रहेगा यस थैंक यू Okay.